pin me. Okay, am I audible clearly? Any problem? Yes, sir. Yes, Vijan sir, you are audible. Okay, so now we will move to physics subject. How you feel? Are you ready for learning physics? Yes, sir. Yes, sir. Well, strongly. Yes, Now, sir. after a long break, you are coming back and joining us, isn't it? Yes. Have you purchased physics textbook? How Yes, many? sir. Yes, All of you having Yes, physics sir. textbook, I believe. Yes, Uh, sir. so well, very good. And I think most of you may be learning also through different classes. Now there are many classes are going on. So I believe all of you know all the lessons which are there for 12th standard. Correct? Yes, sir. Okay. How many lessons are there? There are 16 lessons. Okay. Rotational dynamics, 16 lessons. rotational dynamics, mechanical properties of fluid, kinetic theory of gases, thermodynamics, oscillation, superposition of waves, okay, wave optics, electrostatics, current electricity, magnetic fields, magnetic material, electromagnetic induction, AC current, dual nature of matter, structure of atom and nuclei, and semiconductor. Most of the lessons you have uh, you got a introduction in 11th standard, I think, isn't it? You know all these Yes, sir. lessons little bit. Now in 12th standard we are going to learn little more, okay, and little more concepts you will be learning. So today I thought of starting a lesson which is electrostatics. Okay, electrostatics is the 8th lesson. So all of you take a notebook and follow me with this lesson. Is it shared on my screen, children? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. very good, very good. Now we will start this lesson. So before entering into the lesson, just tell me how much you know about electrostatics. Have you studied thoroughly in 11th standard? Children, respond to me. Hello. Yes, sir. Okay. What are the concepts you have studied? All these things you have to remember. Anyway, I believe most of you may be remembering the concepts clearly, but I want little more clarification to all the students. So I will give a brief introduction to 11th standard topic. Okay. First of all, you should know what is electrostatics. Is it clear to all? What is electrostatics? What is electrostatics? Yes, sir. Stationary of Attractive or repulsive force between body of electric charges at Study rest. of electric charge at rest. Electrostatics, that static word say that it is the study of charges at rest. So if charge is at rest, what are their properties, how they behave, what type of force is producing, what type of field, what type of potential, all these things you have studied in 11th standard. Now I just want to give little more clarity to those concepts because it's almost 1 year over, so you may be not remembering in a good manner. So let us discuss charge. What is charge? What is charge? Charge is the basic concept of this lesson. Charge, you should know what is charge, otherwise how can you go ahead? Moving electron is No, what is charge? Not moving electron. Electron is a charge. But what is the concept of charge here? Have you able to see the screen? Are you able to see the screen?
Yes, Yes, sir. sir. So there is Yes, sir. charge and its definition. Charge is the property of an object by virtue of which it apply electrostatic force of interaction on other object. Electric force is producing. Okay, charge is that particle, that matter. I have given in 11th standard lecture also. Charge is that particle which can produce electrical influence. Okay, electrical influence means electrostatic force related concepts. All those are generated by charge. So charge means here a object or a matter which can produce electrostatic force of attraction or repulsion. Okay, now what is the symbol we are giving here? Q is the symbol for charge. And what is its unit? What is the unit of charge? Coulomb. Coulomb is the unit of charge. Okay, to honor the scientist who, to honor which scientist? Hello, respond to me. Coulomb's law, you may be remembering. Coulomb's law. Coulomb's law. So the scientist who Yes, sir. who first measured the force between the charges, that is coulombs. That scientist name, to honor that scientist name, the unit of charge is given coulomb. Okay, then another important concept here is this field. What is field? What is electric field? You have to note down. I believe all of you having textbook and notebook in front of you. So write the concepts in your notebook. Okay. Okay, children, you have to note down whatever sir. the concepts I am showing here. You write now itself. You should have writing practice. Otherwise, at last when there is a board exam, that time even you will not get the speed of writing and all. So open notebook and write down the concepts very much clearly. Define it. Okay, I have written there electric field, the space in which, or the space surrounding the charge, okay, in which it influence by an influence, or by which influence this. Okay, we can see the space in the surrounding of any charge in which it influence or can be experienced, it can be experienced by other charge is called electric field. Or you can say space around a charge where a charge can do something. Okay, if you place a charge somewhere in space, then that charge can produce repulsive force with another charge of same nature, and it can produce attractive force with another charge of different nature. So that is having a particular range. So within that range only this force of influence you can see. So till what that range is there, till that electric field is there. So electric field is the space surrounding, or space surrounding a charge where that charge can do some influence on other charges. Okay, so this is what the concept of electric field. Then how will you measure electric field? There are two different methods to measure electric field. One is you can measure it as electric intensity. Okay, electric intensity E, that is represented as capital E. That is equal to what? All of you write down the formula of electric intensity. E is equal to, electric intensity is equal to F by Q. Force acting per unit charge is called electric intensity. Force acting per unit charge is called electric intensity. Note down, electric intensity means what? E is equal to F by Q. Okay, F by Q. So the unit is, and now you tell me what is the unit. Am I audible? If I am audible, you have to respond. Okay, one or two respond. Don't go for everyone. I want one or two response only. Newton per coulomb. Okay, others just note down. If it is correct, then others don't. No need to open the unmute and speak. Okay. So Newton per coulomb. All of you note down that Newton per coulomb. Okay, that is the unit of electric intensity, electric field intensity. And there is one more
method of measuring of this electric field, that is called electric potential. What is electric potential? What is electric potential? These are all 11th standard Energy topic. That is why I am asking question to you. Okay, because you should know this, then only you can understand 12th standard lessons. Okay, तो 12th standard का syllabus में सेम concepts का continuation है, बट इसका कंसेप्ट आपको समझना है तो बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. 12th का कंसेप्ट के लिए 11th का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. इसलिए सब लोग आज 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन्स एक बार पढ़ो और उसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को नोट डाउन करो. ओके, so potential is work done per unit charge. Okay, potential means work done per unit charge. Potential का definition सबको by heart होगा. I think if you are loving physics then you will remember all this. If you are not loving physics then it will be difficult. You have to first love your subject. Okay, physics subject को प्यार करना है, तब physics का concept समझ में आएगा और वो याद भी रहेगा. तो potential का definition है, एकदम beautiful definition है. What is that? Potential is defined as the amount of work done to bring a unit charge from infinity to a point against the direction of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक चार्ज को लेके आने के लिए, ओके, चार्ज को हम लोग पुश करके लेके आएगा. तो ऐसा लेके आने के लिए हमको काम करना पड़ता है. मतलब अभी ग्रेविटेशनल फील्ड में देखो, आपको एक पत्थर नीचे से ऊपर लेके रखने के लिए आपको काम करना पड़ता है, बट ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, तब फोर्स नहीं करना पड़ता. बट तब का फोर्स कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रहा है, अर्थ कर रहा है. बट एक पत्थर को ऊपर लेके रखने के लिए आपको काम करना पड़ता है, तो वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो गया. तो अगेंस्ट के डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में काम करने के बाद क्या बन गया? क्या बनता है उधर? पोटेंशियल बनता है. कंसेप्ट क्लियर हो गया पोटेंशियल का? रेस्पॉन्ड टू मी. यस सर. हाँ, तो ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल का कंसेप्ट है, तीन जगह पे आएगा. एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दूसरा मैग्नेटिक पोटेंशियल है, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये तीन जगह पे पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा. किधर फील्ड है उधर पोटेंशियल आएगा. ओके, तो कंसेप्ट समझ में आया होगा. एक पत्थर को हम लोग ऊपर एक जगह पे लेके रखना है तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको लिफ्ट उठा के रखना है, आपको वहाँ काम करना है. ओके, तो ये काम करते समय उसका क्या बनता है? उसका पोटेंशियल बढ़ता है. पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना ऊपर लेके जाएगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, और उधर से नीचे आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी, उतना पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर एक्सर्ट होगा वो ऑब्जेक्ट नीचे आते समय. तो नीचे आते समय वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फील्ड उसको पुल करके ले रहा है. So that is the concept of potential. I think all of you are clear about this. Now you write the formula for potential. Potential is equal to work done upon unit charge, W by Q. अभी यूनिट क्या है पोटेंशियल का? ये तो बहुत कॉमन यूनिट है, सब जगह पे, घर पे भी आप यूज करता होगा. पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट. वोल्ट. वेरी गुड. जूल पर कूलम इज करेक्ट, बट जूल पर कूलम को हम लोग प्यार से क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वोल्ट. टू ऑनर अनदर साइंटिस्ट, वोल्ट, Volta cell, you may be knowing about it, who first discovered the battery voltage and all this, to honor that scientist. Okay, so that is the unit of potential, and the concept of potential is also clear. Now what is there next? Now to understand the nature of electric field, what we do, we will make an imaginary picture in front of us. What type of imaginary picture? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस. हाँ, ये अभी इलेक्ट्रिक के बारे में बोलते समय थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए. आप जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो. मैग्नेट को एक आयरन पाउडर के पेपर में रखने के बाद वो पेपर को थोड़ा सा शेक करके देखो कितना मैग्नेटिक लाइंस बनेगा. ये तो एकदम क्लियर होगा. प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन में फिजिक्स सब्जेक्ट में ये सब देखा होगा. तो मैग्नेटिक लाइंस देखने के लिए बहुत इजी है. वो मैग्नेटिक पाउडर एक मैग्नेट के पास रखेगा तो वो दिखेगा. बट टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स ए इमेजिनरी लाइन. ओके, इट्स अ कंसेप्ट इज इमेजिनरी. मैग्नेटिक लाइन्स कंसेप्ट भी इमेजिनरी है, बट उसको पिक्चराइज कर सकता है.
but electric lines of force purely imaginary. Here again you have to imagine that what is the lines. तो क्या है? For that you have to trace the path of a unit charge in electric field. So put a unit charge in electric field and trace its path. You just draw the path of unit charge in electric field. Then you will get a curve between पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव. आपको 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक का पिक्चर्स ये लाइन फोर्स का पिक्चर याद होना चाहिए. मैं बोलते समय याद आ रहा है क्या नहीं? किसी को याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स है. चार्ज के अराउंड लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसा डाइवर्जिंग लाइन्स है, कन्वर्जिंग लाइन्स है. किस में डाइवर्जिंग होगा? किस चार्ज में डाइवर्जिंग लाइन्स होगा? बोलो फटाफट. चाहे ये सब आपको इंस्टेंटेनियसली आंसर देना है. हाँ, Positive. पॉजिटिव चार्ज डाइवर्जिंग, नेगेटिव चार्ज कन्वर्जिंग लाइन्स. ओके, Converging. हाँ, ये सब क्यों आंसर आना चाहिए आपको. इतना अच्छा सा कंसेप्ट को समझना है तभी आएगा. और ये इमेजिनरी लाइन इज नथिंग बट द पाथ ऑफ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. If you put a unit charge in an electric field, in which path it will be tracing or traveling, that path you have to draw. That path is called lines of force. Okay, and this lines of force is actually introduced by Michael Faraday to understand the nature of the field. Okay, to understand the nature of the field, and by understanding this nature of the field, we can also measure its strength by considering number of lines. You know that the concept of electric field based on lines of force. What is that? What is electric intensity in terms of lines of force? You can say it is the number of lines of force per unit area. Unit area के अंदर कितना lines of force है? Okay, how many lines of force are passing through unit area? That gives a measure of electric intensity. More number of lines of force, electric intensity is strong. Less number of lines of force, now you have to fill. You have to fill. Somebody fill me. Is big. Weak. Electric field will be weak. Okay, so that's the concept of electric lines of force. And another important term is there, that is electric flux. What is electric flux? Number of lines of force. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Number क्या of बोला मैंने? lines of force. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. बट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स number of lines, somebody fill that gap. Present Huh? at the poles. No, not at the pole. Flux, concept is flux, electric flux. What is electric flux? Number of lines of force in any given area, anywhere, any area, random area. You have to take a random area. Okay, if you are taking unit area, what happens? Per unit area hoga. Number of lines per unit area is electric intensity. Number of lines in any area, that is electric flux. Okay, so see the next. You can take screenshot those who want the concept, otherwise you note down. Best way is to write in your notebook. If you want, in addition to that, you can put the screenshot and keep it in your mobile, but the best way, I suggest you to write down in your notebook. Okay, if you write, you will get two benefit. One is that you are writing, that means your brain is responding in reading and writing it, so it give you more learning. Okay, so try to write down and take the screenshot. Are you getting me? Yes. Yes, sir. Okay, now what is electric flux? I have already given definition. Now express in terms of equation. So electric flux is E dot ds, a vector product है. Flux is a scalar quantity and you have to take a vector product, that is E dot ds. E means electric intensity,
ds is the area. Okay, so E dot A also you can write E dot A or E dot S. ds is the small area. Then flux is represented as phi symbol, phi. Electric flux is equal to E dot ds. Okay, where ds is an area vector, and unit also mentioned here, Newton meter square per coulomb is the unit of electric flux. Okay, any doubt about this much part? It's almost 11th standard topic revision. No, sir. It's almost revision. I have almost completed. Now I will switch into one more important concept that you have studied in 11th standard, that is Coulomb's law. So what is Coulomb's law? I think law is very important and everyone should know. Everyone should remember this law. V is equal to IR. Arey, what are you teaching? What you said? IR is Ohm's law. I am asking Coulomb's law. You should remember which law. Simply say V is equal to IR. That is Ohm's law. Okay. This is Coulomb's law. I am asking Coulomb's law. तो ब्रांच को भी समझना है, कौन सा लेसन, ये भी स्टैटिक्स है. स्टैटिक्स में कैसे आएगा करंट, करंट नहीं आएगा, करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस भी नहीं है. ओके, तो ये स्टैटिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ. व्हाट इज द लॉ? K Q1 Q1 into Q2 upon R. Yes, now you can see on the screen what is Coulomb's law. Those who don't know the definition, note down and learn today itself. Okay, it's very very important law. Electrostatic force of interaction between the 2 point electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges. This is Coulomb's law. Have you studied this last year? Yes, sir. Yes, sir. Everyone remember now? I think you should remember. Okay, strictly this is what, strictly speaking, Coulomb's law applies to stationary point charges. ये point charges के लिए applicable है. अभी projected charge के लिए Coulomb's law apply करने के लिए आपको उसको modify करना पड़ता है, क्योंकि ये this law is defined for point charges. Okay, तो अभी एक बड़ा प्रोजेक्टेड बॉडी है तो उसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते समय आपको मॉडिफिकेशन लगता है, तो हम लोग उसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे. ओके, तो लॉ, फिजिक्स में लॉ याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है? आपको फॉर्मूला याद रखना है. बहुत सिंपल है. ये स्टेटमेंट तो कोई भी बना सकता है. आपको फॉर्मूला याद है तो स्टेटमेंट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला. सी दिस. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी सपोज आपको दो चार्ज अज्यूम करना है, ठीक है. यू हैव टू इमेजिन हियर are you able to see my pen? Are you able to see my pen? Okay, here Yes, sir. Yes, sir. this is the Q charge 1, first one. This is Q1 and here charge Q2. Two charges are there. They are separated by a small distance r. Then what is the force between these two charges? That was given by Coulomb's law. So what is this? Here 2 point charges are there separated by a small distance r. Then what is the force? According to Coulomb, the force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, product of the charges and square, inversely proportional, 1 upon r. Okay, inversely proportional to square of the distance between them. So you can write F is proportional to Q1 Q2 upon r square. But here you have to replace the proportionality constant. Proportionality constant is K. Okay, you can take it as K. K is a positive constant of proportionality called electrostatic force constant. Okay, now what is its value? So value you can get K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, epsilon 0
ओके, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद है क्या है ये एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू क्या है? मैंने इधर नोट नहीं किया। इसका वैल्यू क्या है? किसको याद है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? बोलो। यस, 8 आएगा पहले। 8.87। ओके, फिर उसके बाद क्या है? 85 है, 87 नहीं, 8.85 इंटू 10 रेज टू हाउ मच? 10 रेज टू माइनस, अरे नोबडी स्पीकिंग, बोलो। 12. माइनस -12. 12. Okay, so this is the value of permitted epsilon 0। उसका वैल्यू याद रखो, ये कांस्टेंट याद रखो, ये लो है। अभी कूलम्स लो सबको क्लियर हो गया? अभी कोई पूछेगा तो कूलम्स लो इमीडिएटली बोलेगा या ओम्स लो बोलेगा? हाँ, क्या आंसर मिलेगा? ओम्स लो का आंसर मिलेगा कि कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ के लिए कूलम्स लॉ ही बोलना है। ओके, कूलम्स लॉ बहुत सिंपल हो गया। क्या करना है आपको? इमेजिन करना है ये पिक्चर, इधर का ये पिक्चर है, इधर मैंने दिखाया ये पिक्चर है, इसको याद रखने का। ये पिक्चर याद रहेगा तो उसमें से फोर्स का फॉर्मूला बनाना बहुत ही इजी हो गया। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला हैविंग द सेम स्ट्रक्चर। अभी ग्रेविटेशनल फॉर्मूला भी आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका भी स्ट्रक्चर सेम है। तो फिजिक्स में एक हाँ ऐसा एक नेचर है फिजिक्स में। फिजिक्स ऐसा रहता है, वो अलग अलग नहीं रहता है। अभी ब्रांच अलग है बट फॉर्मूला को भी एक सिमिलैरिटी है, रिसम्बलेंस है। फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर फॉर्म में आ रहा है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, अभी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स का फॉर्मूला आता है, उसका भी स्ट्रक्चर सेम हो जाता है। और ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है क्योंकि ये मीडियम को डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन क्या है? वो मीडियम का उस इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको मीडियम के हिसाब से चेंज होगा। मतलब दो चार्ज को मैं एयर में रखेगा तो एक फोर्स बनेगा, दो चार्ज को पानी में रखेगा तो दूसरा फोर्स होगा, जो इसको वैक्यूम में रखेगा तो अलग है। मतलब वैक्यूम और एयर में हम लोग सेम लेते हैं बट उसमें स्लाइट डिफरेंस है। तो दिस इज व्हाट द concept of Coulomb's law. You can take screenshot if you want, then I will move to the next slide. Okay, ये क्या? Yes, स्क्रीनशॉट नोट किया, लिख दिया, कंसेप्ट लिख दिया, लो लिख दिया, Yes, sir. सबका हो गया होगा ऐसा Yes, लग रहा है sir. मेरे को। टाइम Yes, इनफ है, sir. स्पीड है तो बोलने का। आपको कितना टाइम चाहिए मैं उतना देने तैयार हूँ, ठीक है। बट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बार बार वही पॉइंट में वापस जाने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। एक बार वो लेक्चर ये स्क्रीन देखने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट्स ओनली माय मोटिव। ओके, सो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये भी 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है बट 11th स्टैंडर्ड में जस्ट आपको दिखाया ऐसा एक लॉ है, बस ऐसा एक थियरम है। बट उसके बाद क्या है और कितना डीप में है वो सब आपको नहीं सिखाया, बट ये सिखाया है गॉस थियरम। क्या है गॉस थियरम? ज़रा भी याद नहीं है, लग रहा है किसी को भी याद नहीं है, तो इसलिए मैं वापस वो पॉइंट लेके आ रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक। Number of lines in any given area. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ गिवन एरिया। ओके, तो अभी ये कंसेप्ट है और वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूज़ करके मेजर करना है ये चार्ज फ्लक्स को। अभी ये फ्लक्स को और कैसे मेजर कर सकता है और क्या तरीका है फ्लक्स को मेजर करने के लिए? दैट इज गिवन बाय गॉस थियरम। ओके, गॉस थियरम सेज हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को गॉस थियरम एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है। मतलब कूलॉम्स लॉ को थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इंटीग्रेशन अभी आप सीखा होगा मैथ्स में, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया है।
कूलम्स लॉ क्या है, एक समेशन फॉर्म में है, मतलब एक नॉर्मल केस में बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा, बहुत ज़्यादा चार्जेस रहेगा, है नंबर ऑफ चार्जेस रहेगा, तो कूलम्स लॉ का फोर्स फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या है वो समेशन का मेथड है, और वेक्टर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और समेशन ये सब आ गया तो बहुत लंबा जाएगा। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए गॉस थियरम इंट्रोड्यूस किया है। ये मैथमेटिशियन है, गॉस इज अ फेमस मैथमेटिशियन, ही जस्ट modified Coulomb's law into a simple integral form। ओके, उसको इंटीग्रेशन का फॉर्म है। इंटीग्रल अभी समझ में आ रहा है या नहीं? अभी मैं इंटीग्रल डिफरेंशियल बोला तो आपको समझ में आना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड है। ओके चिल्ड्रन, प्लीज रेस्पॉन्ड। इंटीग्रेशन समझ में आएगा क्या नहीं? No, sir. No, little bit studied in 11th standard and now even 12th standard Yes, also sir. it is समझ में started. आएगा। So you have to understand, you just learn the 11th standard second lesson mathematical formulas। okay, तो उसमें इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं अभी वो सब कंसेप्ट के लिए वापस नहीं जा सकता कि ये 12th स्टैंडर्ड है, तो आपको 11th स्टैंडर्ड का रेफर करके कंसेप्ट क्लियर करना है, और 12th स्टैंडर्ड मैथ टीचर विल टीच यू इंटीग्रेशन इन डिटेल, दैट टाइम यू विल गेट एनीवे। सो नाउ कम टू द लॉ, गॉस थ्योरम। द सरफेस इंटीग्रल, द इंटीग्रल आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड free space is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed in that surface। okay, this is line integral of electric field। अभी हम लोग उसके लिए फ्लक्स का भी कंसेप्ट, मैं फ्लक्स के टर्म्स में उसको बोलेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। फ्लक्स इज फाई, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ओके, इंटीग्रल, अभी फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पहले ही देखा है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, E इंटू ए, ई ए, फाई इज इक्वल टू ई ए और ई एस, ऐसा फॉर्मूला है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी ये क्लोज्ड इंटीग्रल, इंटीग्रल अलग अलग टाइप का रहता है, तो उसमें ये क्लोज्ड देखना है आपको। क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब एक क्लोज्ड सरफेस के लिए ही अप्लीकेबल है। क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस, अभी वो एक सरफेस का आधा ओपन है, मतलब एक सेमी मतलब स्पीयर, सेमी स्पीयर है तो उसका आधा ओपन है। ओके, सॉलिड स्पीयर, ये सॉलिड स्पीयर है, कंप्लीटली सॉलिड कवर्ड है ऑल द साइड्स। ओके, देन दैट इज ए क्लोज्ड सरफेस। तो ये क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लीकेबल होगा। क्लोज्ड इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल मतलब वो एरिया को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का मतलब वो टोटल फाइंड करना है। इंटीग्रेशन इज अ कंटिन्यूस सम, कंटिन्यूस समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली हमको सम ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट रहेगा। वो एक स्पीयर के लिए एक छोटा छोटा एरिया कंसिडर करना है, वो छोटा एरिया का ये प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर पूरा सरफेस का कितना ऐसा छोटा एरिया है वो सब का ऐड करने के बाद आपको टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस मिल जाएगी। तो ये टोटल फ्लक्स, एक सरफेस की टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करना है उसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे। समझ में आया? तो फ्लक्स क्या है इसमें, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो रिलेशन क्या आ गया, गॉस थ्योरम सबसे सिंपल में कैसे समझना है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम एग्जैक्टली क्या है, इट्स ए मेजर ऑफ फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या है, मेजर ऑफ फ्लक्स। कूलम्ब्स थ्योरम में क्या देखा हम लोग, कूलम्ब्स थ्योरम इज ए मेजर ऑफ फोर्स, वो तो फोर्स मेजर किया है, तो ये फ्लक्स मेजर किया है, फ्लक्स से फोर्स लिंक हो जाएगा, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अभी आप नोटबुक में एक सिंपल में भी लिखो, सिंपल में लिखो ये फाई इज इक्वल टू, ऐसा फाई लिखो,
फाई इज इक्वल टू क्यू बाय, सिंपल में, ये सिंपल में और मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिखना है, क्यू बाय एप्सिलॉन. ओके, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, ये दो अलग अलग चीज़ है, वो मैं बाद में समझाता हूँ. ये 11th में हो गया है टॉपिक, फिर भी बाद में एप्सिलॉन भी लिख सकता है, एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता है. एप्सिलॉन नॉट लिखेगा तो क्या होगा, वो प्योरली एयर मीडियम के लिए है. एप्सिलॉन लिखेगा तो कोई भी मीडियम हो सकता है, वो वाटर या केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, wherever. If you want any medium, then you write epsilon. If you want only air medium, then you write epsilon naught. Or epsilon is equal to epsilon 0 k. Epsilon is equal to epsilon naught k. Epsilon naught लिखने के लिए थोड़ा, epsilon naught, ये epsilon naught होगा into k. K means dielectric constant. तो ये 11th स्टैंडर्ड में आपको टॉपिक आया है. Okay, epsilon is equal to epsilon 0 into k. You can write either epsilon 0, epsilon 0 कब लिखना है, k is equal to 1 होता है. किसके लिए k 1 है, एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम के लिए k का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाता है, तब ये q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. तो फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज व्हाट गॉस थ्योरम. तो अभी ये सेंटेंस देख के आपको बहुत टेंशन आया होगा, ये क्या है. देखो अभी समझ में आएगा, बहुत सिंपल में, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, बस उतना ही है. गॉस थ्योरम इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन. इज इट क्लियर? Now you tell me, Yes. just give response. Have you understood this? Is it clear? Is it simple now? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना तो याद रखने सबको हो जाएगा, क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन. तो गॉस थ्योरम इज दिस. नाउ उसका फिर अभी बेसिक एक बार समझ में आ गया, उसका सिंपल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस इन लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. दैट इज दिस. फाई इज इक्वल टू इंटग्रल, ये क्लोज्ड, इधर एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्लोज्ड इंटग्रल ई डॉट डी एस, बोथ आर वेक्टर. एरिया का वेक्टर कैसे लेना है वो समझ में आया होगा. एरिया को एरिया एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया को वेक्टर कैसे कंसिडर करना है, उसके लिए हमको एकदम छोटा एरिया लेना है, एकदम स्मॉल एरिया. इफ यू आर टेकिंग ए स्मॉल एरिया, देन दैट स्मॉल एरिया इज हैविंग ए डायरेक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल. तो वो एरिया का नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन. मतलब एक स्मॉल सर्कल है, ये देखो ये इतना है, तो इसको ds कंसिडर करते हैं. ये ds है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन. तो स्मॉल एरिया का नॉर्मल वो वेक्टर, उसका वेक्टर डायरेक्शन होगा, वेक्टर का डायरेक्शन होगा. तो एरिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, बट ds, that is small area, is a vector quantity. Therefore it is E dot ds and it is 1 by epsilon 0 q. Is there number of charges, then this sigma. एक ही चार्ज रहेगा तो q by epsilon. If number of charges, then how many charges, all those charge value have to add here. That is why it is E is equal to 1 to n qi. ये सिग्मा समेशन के लिए लिखा है. ओके, इसका मतलब क्या है, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n qi. क्या है इसका मतलब, q1 प्लस q2. ओके, q2 प्लस, अभी आपको ऐड करते जाना है q3. ऐसा कितना रहेगा, n तक, ऐसा ऐसा जाके कितना रहेगा उतना ऐड करना है, कितना आएगा qn. समझ में आया? इसको सिग्मा i इक्वल टू 1 to n qi बोलते हैं. समझ में आया? ओके ओके चिल्ड्रन. Yes. Yes, sir. Now all of you note down the definition. Surface integral of electric field intensity over any closed surface in free space is equal to 1 upon epsilon 0 times the net charge enclosed in that surface. मतलब एक सरफेस के अंदर कितना चार्जेस रहेगी, वो चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन 0 रहेगा उसका फ्लक्स. अभी समझ में आ रहा है मैं अभी क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? मतलब एक स्पीयर है हमारे पास. ओके, इमेजिन करो, फिजिक्स मतलब प्योरली इमेजिनेटरी कंसेप्ट है, सब आपको इमेजिन करके बनाना पड़ता है. आपको एक स्पीयर इमेजिन करना है और स्पीयर के अंदर चार्जेस है. ओके,
तो स्पीयर के बाहर कितना फ्लक्स होगी, वो हमको कितना नंबर ऑफ चार्जेस है उसका सम लेके एप्सिलॉन 0 से डिवाइड किया तो मिल जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक स्पीयर है, उसके अंदर चार्जेस नहीं है। ओके, एक स्पीयर है, होलो स्पीयर है, उसके अंदर चार्जेस नहीं है, तो उसका फ्लक्स कितना होगा? What will be the flux outside a sphere, hollow sphere, where there is no charge at all inside? चार्ज नहीं है अंदर, तो उसके बाहर फ्लक्स कितना होगी? 1 by epsilon naught. अरे चार्ज नहीं है तो उधर 1 कैसे, क्यू तो 0 डालना पड़ता है ना। जीरो अभी नंबर ऑफ चार्जेस को ऐड करना है, आपके अंदर चार्ज ही नहीं है तो उधर 0 हो गया। 0 हो गया तो फ्लक्स क्या होगी? 0। वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये सब समझना आपको, ये कंसेप्ट समझे तो इसका आंसर मिलेगा। अभी मैंने क्या समझाया उसका कंसेप्ट आपको समझ में आने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसमें किसका किसका आंसर आ गया है वो सबको मैंने क्या समझाया था वो समझ में आ गया। किसको नहीं आया वो थोड़ा और रिवाइज करो, समझ लो कि इसमें बहुत सिंपल है। इसको इमेजिन करके लेना आपको एक स्पीयर इमेजिन करना है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें स्पीयर ही इमेजिन करना, आप कोई भी शेप का सरफेस इमेजिन कर सकता है, उसको क्लोज्ड नेचर होना चाहिए, दैट्स ऑल। एक क्लोज्ड सरफेस, फॉर एग्जांपल आपके घर है। ओके, आपके घर एक पूरा विंडो बंद कर दिया, पूरा वेंटिलेशन भी नहीं है, सब बंद कर दिया। ओके, और उसके अंदर आपको एक चार्ज है, ओनली 1 चार्ज, यू आर द चार्ज देयर। ओके, ओनली 1 चार्ज, तो घर के बाहर कितना फ्लक्स होगी? दैट्स द आंसर, दैट इज Q by एप्सिलॉन। एक ही चार्ज है तो 1 चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ओके, दैट इज द फ्लक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू हैव टू प्रूव दिस। ये सब सिंपली हम थियरम है, तो ऐसे सिंपली बोलने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना और उसको प्रूव करके दिखाना ज़रूरी है। तो हम लोग उसके प्रूफ के लिए जाएंगे। ओके ना? अभी टाइम तो हो गया है। सर क्या कर रहा है अभी? लास्ट मोमेंट में बहुत बड़ा डेरिवेशन दिखा रहा है, क्या करूं? ऐसा सोच रहा है क्या? हैं? बोलो। नो, 5 मिनट है हमारे पास। मैं 5 मिनट में इसका एक सिंपल प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको नोट करना है, लिखना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप है और इंटीग्रेशन का स्टेप है। ये अभी डिफ़िकल्ट लगेगा बट मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, आपको सिंपल तरीके में समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो देखो, पहले क्या करना है, फ्लक्स उसको बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है? तो बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में मतलब ये इंटीग्रल इधर से हटाए हम लोग, इसको फिर इंटीग्रल हटाते समय ये क्या होगा, ये डी फाई हो जाएगा। ये डी फाई का मतलब क्या है और फाई और डी फाई में क्या फ़र्क है? आगे कंफ्यूजन क्या है, इधर भी डी फाई लिख देते हो, है ना? ऐसा पूछ रहा है क्या? डी फाई कब आएगा? एक स्मॉल फ्लक्स। अभी मैं क्या बोला, ये लो क्या दे रहे हैं हमको, ये लो के मीनिंग क्या है, पूरा फ्लक्स चाहिए हमको। एक ऑब्जेक्ट के बाहर कितना फ्लक्स होगा, क्योंकि एक स्पीयर है, ये स्पीयर है, ये स्पीयर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, मैंने सिंगल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? इसके पूरे सरफेस में बाहर कितना फ्लक्स है, दैट इज फाई। और डी फाई क्या है? इतना एरिया, इधर एक सर्कल दिखा रहा है, देखना है, दिख रहा है ये पार्ट में एक सर्कल, इतना एरिया का सर्कल, ये स्पेस का सर्कल, इसके बाहर कितना फ्लक्स होगी, दैट इज डी फाई। समझ में आया? अभी समझ में आया होगा आई बिलीव, ठीक है? तो ds एरिया के लिए कितना फ्लक्स है, दैट इज डी फाई। और फाई क्या है, पूरा स्पीयर के बाहर, ये पूरा स्पीयर के बाहर कितना फ्लक्स होगी, दैट इज फाई। समझ में आया? हाँ, नाउ यू हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस E एंड ds। मैं क्या बोला था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना? डाइवर्जिंग लाइन्स है ना, एंड नॉर्मल टू द सरफेस, 11 स्टैंडर्ड में सिखाया है मैंने। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड
is directed normally away from the surface from any symmetrical body. Symmetrical body मतलब एक रेगुलर शेप, परफेक्ट शेप है. तो परफेक्ट शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली अवे रहेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए. नेगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली इनवर्ड, इनसाइड. ओके. और ds एरिया का डायरेक्शन क्या है? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू हियर, ds एरिया मीन्स ए स्मॉल एरिया और उसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, ये सरफेस का नॉर्मल. तो बोथ डायरेक्शन मैच हो गया है ना. ds और e का डायरेक्शन मैच हो गया. तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो, डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल आता है? साइन एंगल है क्या? कॉस एंगल? cos, कॉस. और इधर एंगल क्या है? ds और e के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री. तो 0 cos 0 क्या है? 1. सो तो इसको अभी वो वैल्यू 1 आएगा, इसलिए cos नहीं लिखा है इधर. ठीक है. अभी क्या देखना है आपको? इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग एक एक यूनिट वेक्टर असाइन किया है. r कैप इज a unit vector, n cap is a unit vector. Okay, both these are unit vectors. r cap is the unit vector in the direction of this radius vector, which is also away from the center, and n cap is the unit vector of the normal, ds ka normal. Okay, both these, and you can represent this as by putting the value of e. e का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 q upon r square. So by putting the value of E and r cap shows the direction of electric field, and then take the dot product, it is r cap dot n cap. Okay, then r cap dot n cap is 1 into 1 cos 0, that is 1. मतलब ये यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है. तो a dot b is ab cos theta, a1 b1, because both these are unit vectors and angle is 0. So this is 0. So now you can put that value here. Therefore, flux d phi is equal to 1/4πε0 q into ds upon r square. Okay, q into ds upon r square. अभी हम लोग क्या फाइंड किया है? ये ds एरिया का फ्लक्स क्या है? ds एरिया का फ्लक्स होती है 1/4πε0 q by r square into ds. समझ में आया होगा ये स्टेप. ओके. Now what we want the total flux outside. ये स्पीयर का बाहर कितना फ्लक्स है? तो उसके लिए d phi is equal to इंटीग्रल, ये इंटीग्रेट करना है. ये d phi मतलब एक स्मॉल एरिया का फ्लक्स है. अभी पूरा सरफेस के लिए कितना फ्लक्स है उसके लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन किसको अप्लीकेबल है? किधर वेरिएबल है उसको अप्लीकेबल है. 1/4πε कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है क्योंकि एक ही चार्ज है और उसका वैल्यू कांस्टेंट है. r डिस्टेंस है, स्पीयर का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, स्पीयर का रेडियस भी कांस्टेंट है. फिर क्या बचा है? इंटीग्रल ds. समझ में आया? इंटीग्रल ds. व्हाट इज इंटीग्रल ds? ds मतलब एरिया, इंटीग्रल ds मतलब इंटीग्रल का एक ही बात है, क्या है? टोटल एरिया. इंटीग्रल करने के बाद क्या मिलना चाहिए? टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर. व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, बोलो समवन, एनीबॉडी? 4πr square. Just substitute that integral ds as 4πr square as shown here. See this. Now you just simplify now this. ये 4π कैंसिल हो जाएगा और ये r square कैंसिल हो जाएगा. What we got? We got this. What we got? Flux is equal to q by epsilon. This is what I said. This is what I said. Gauss theorem is simply flux equal to q by epsilon. समझ में आया? बहुत हो गया ना आज के लिए, बहुत हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को. तुम्हारे लेवल में मैं मैक्सिमम ट्राई किया है आपको समझाने के लिए. आई थिंक यू शुड हैव अंडरस्टूड with this concept. So today I am winding up here. Now you will have a small break. After that next subject will continue. So any doubt is there, you can ask. Any doubt? If anyone have any doubt,
Just ask. No, sir. No, sir. Everything is clear? Gauss No, sir. theorem can Yes, somebody is speaking something. I did. Sir, Gauss theorem can Gauss theorem? Please tell loudly. I'm not getting you. Sir, Gauss theorem, can it come in exam? Arey, now this year no such syllabus reduction is given till now. Okay, so if no reduction is there in syllabus, then it will come. If it is reduced from the syllabus, then it will not come. But last year also it was there, and this definitely will be there. Okay, it's a very important concept, so you have to learn. Already started in 11th standard, that concept of Gauss theorem is now continuing in 12th standard. Okay, this year you have applications, more about it. It's proof and applications. It is there, so you have to learn. Okay, till now there is no such information to us. If you get any information, let you know. After that we can delete that. Anyway, it's very important concept, and if you are preparing for entrance exam and all, you require the concept of Gauss theorem. So you don't leave the subject with unnecessarily. You are not only concentrating to the board exam, you have to concentrate for entrance exams also. So by keeping that in